Sir, you are mute. Yeah. Sum number 22. ये अभी कोई स्पेसिफिक बिजनेस का नहीं है, प्रैक्टिस ट्रांजैक्शंस है ऑफ परचेजेस एंड सेल्स. परफेक्टली करना है इनको. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द बुक्स ऑफ कुछ नहीं लिखना है, डॉट डॉट डॉट, दीज आर प्रैक्टिस ट्रांजैक्शंस. ओके, पर्टिकुलर्स, डेट्स है, डेट पर्टिकुलर्स. Your serial number, right? डेट है वो एक्चुअली महीने का, जस्ट मंथ नहीं दिया है और ईयर नहीं दिया है. जस्ट मेक इट जुलाई 2016, जुलाई 2016 कर देना. ओके, जुलाई 2016. लेट्स बिगिन. सम नंबर 22. First one, placed an order for goods of rupees 5,000 to Vishal at 10% TD and 5% CD. Payment within 7 days. बताओ. No No entry. entry. First one is no entry. 1st July 16, no entry. All of you comfortable with that? Placing and receiving an order is not a transaction. Okay, अभी तक Yes, sir. goods supply नहीं हुआ है, तो placing an order is not a transaction, hence no entry. Order जब deliver होगा या फिर जब होगा, that time will pass the entry. Okay, तो second वाले में ही दिया he executed the order. अभी order place किया है, तो are we purchasing or are we selling? Purchasing. Purchasing. So 2nd Purchasing. July 16. Acha, can you look at the transaction and tell me how are we purchasing the goods? Is it on cash or credit? Credit. All of you got that? So only पार्टी TD का नाम, will. हाँ, पार्टी का नाम दिया, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. So only TD should come, no CD, right? And उसके बाजू में दिया payment within 7 days. What do you mean by that? Payment within 7 days? To avail cash discount. Avail cash discount. Okay, if we make the payment within 7 days, we will get some cash discount. Acha, 7 days from when? From placing the order का date कि from execution का date? From receiving the order date. From receiving the order date. Execution के date से 7 days के बाद तक, 7 days तक we will get the discount, cash discount. Okay, otherwise नहीं मिलेगा अपने को cash discount. So यहाँ पर आपका पहले तो गुड्स है 5,000 का, 5,000 पे 10% सब्ट्रैक्ट किया तो गेट 500. नेट अमाउंट इज 4,500. So right now we are buying on credit. So what is the entry for credit purchase? Purchase account debit to Vishal account. To Vishal account. Purchase account debit to Vishal account. That should be 4,500. Purchase account debit to Vishal account 4,500 being goods purchased from Vishal. Being goods purchased from Vishal. All of you got that? Clear with the transaction? It's on credit. पार्टी का नाम था and CD का terms are 7 days. वो 7 days कहाँ से होगा? From the date of execution of the order. Obviously आपने आज goods order किया और 10 दिन बाद goods आ गए, तो आज से थोड़ी 7 दिन, जिस दिन goods आएंगे वहां से 7 days. 7 days के अंदर अगर आपने पे कर दिया तो CD अलाउ होगा, नहीं तो नहीं होगा. Simple as that. Then थर्ड वाले में देखो क्या हो रहा है. 3rd July we paid half the cash to Vishal. We paid half of the cash to Vishal. Now who is Vishal? Vishal is our Editor. creditor. We have to settle him. उसको पैसे देने हैं.
कितने पैसे देने हैं, बता सकते हो देख के यहाँ पे? We have to pay him 4,500, but we've only paid him 2250. So 2250 पे 5% CD मिलेगा. Very good. We were supposed to pay him 4,500, but we are paying only half, right? So half of what? Half of 4,500. That comes to 2250. We are paying right now half. We are settling the account by half. मुझे जरा सोच के बताना, will we get some CD? Yes. Yes. All of you agree on On that? this, yes. 5%, because we are paying before 7 days, right? Yes. Within 7 days. So 2250 pay less CD 5%. That comes to how much? 112.5. So 113. 13. Rounded off to 113. So you get your net amount to be 2137. 2137. अभी आपने 113 के जगह 112 कर दिया और नीचे 2138 कर दिया, एब्सोल्युटली फाइन. ओके, ऊपर नीचे एक आध रुपया ऊपर नीचे हो गया, डजेंट मैटर. 1 रुपी 2 रुपी डजेंट मैटर. ओके, बिग डिफरेंस नहीं होना चाहिए. 1 रुपी 2 रुपी राउंडिंग ऑफ का इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. अभी एंट्री क्या होना चाहिए? वी आर पेइंग बाय कैश टू विशाल. सो व्हाट इज द एंट्री वी आर सपोज टू पास? Vishal account debit to cash account to discount received account. विशाल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Cash कैश अकाउंट टू discount received डिस्काउंट account. रिसीव्ड अकाउंट. Received क्योंकि account. सीडी है तो बुक्स में रखी है. यस, ऑल ऑफ यू गॉट दैट? विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. कंफर्टेबल? Vishal to cash to discount received. Okay. Vishal account debit shall be 2250 to cash. Are we giving him cash of 2250? Think. 137. हाँ, 2137 ही दिया है उसको. 2137 और बाकी का है 113 rupees, that is discount. Okay. Being half payment made, half amount paid या half payment made to Vishal at discount. Half amount paid to Vishal at CD या discount. ये पहले तीनों ट्रांजैक्शन समझ आ गए आपको? दिस इज एक्चुअली हाउ द प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल वर्क्स. मम्मी हई तुझी चानत मेरी तुम्हारी. प्रथम को चाय चाहिए. गुड So मॉर्निंग. if we Yeah. pay this for ये हमने पेमेंट विद इन 7 days किया, पर हम लोग का इसका सेल्स बहुत अच्छा हुआ और उसका दूसरा पेमेंट 6th को किया, तो 6th को वापस सीडी मिलेगा. यस, ऑब्वियसली मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा. विद इन 7 days दिया हुआ है ना वहां पे. विद इन 7 days में आप पार्ट में पे करो, फुल पे करो, 2 बार पे करो, 3 बार पे करके चुकाओ. विद इन 7 days जब तक आप चुका दोगे तब तक आपको सीडी मिलता रहेगा. तो हम ऐसे पे करते तो हमारे पास जो डिस्काउंट ज्यादा मिलता है ना हमको. यस, बिफोर डेट अगर आप पे कर दो, टाइमली पेमेंट कर दो तो डिस्काउंट मिलने ही वाला है ऑब्वियसली. No, but if we pay in parts before date, so we get to avail lot of overall. वो तो अरे टोटल पे करो कि पार्ट में पे करो, टोटल डिस्काउंट तो उतना ही मिलेगा आपको. Okay. वो तो उतना ही मिलेगा ना, टोटल डिस्काउंट थोड़ी अलग होगा. आप पूरा 9000 पे कर दो, 4000 पूरा 4500 पे करो कि 2250 2 बार पे करो, डिस्काउंट तो उतना ही होगा. 113 प्लस 113 और उधर 4500 का 5%, 225. Got it? Yes, thank you. Welcome. Next one is fourth one. Purchased goods worth 5000 less. Purchased goods worth 5000. Oh, sorry. Received an order from Vasant for rupees 10,000 at 10% TD, 2% CD. Payment within 5 days. Tell me, received an order. Is that No entry. a transaction? No entry. No. Receiving an order and placing an order are not transactions, so no entry. So 4th of July. लिख देना receiving. No entry लिखना पहले तो. No entry. Receiving an order is not a transaction. Hence, I have one doubt in second entry. How did it came 4,500 over there?
Here you see ना, purchase to विशाल we have written 5,000 का गुड्स था, उस पे 10% टीडी माइनस किया हुआ था ऊपर, देखो विशाल का ट्रांजैक्शन में। तो विशाल को हमें कितना देना बाकी था, 4,500, राइट, नॉट 5,000। टीडी इज नेवर एंटर्ड इन द बुक्स। आपका बिल वैल्यू था 4,500, तो आइडियली यू आर सपोज टू पे 4,500 टू विशाल। गॉट इट? फ्रॉम द अबाउट ट्रांजैक्शन, विशाल वाला ऊपर ट्रांजैक्शन था ना, वहां से पता चला वी आर सपोज टू गिव हिम 4,500। गॉट इट? उसका हाफ कर लिया, बढ़िया। देन अच्छा ये देख के बताओ जरा, विशाल को अभी भी कितना पैसा देना बाकी है? विशाल को अभी भी स्टिल हाउ मच आर वी सपोज टू पे? 2250 देना बाकी है, स्टिल अवर क्रेडिटर। ओके, उसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं करनी है। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि इसकी भी कोई एंट्री होगी, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी आपने विशाल को क्रेडिट करके रखा है ना 4,500 से, तो इज ऑलरेडी योर क्रेडिटर। उसमें अब ये जितना जितना पे करते जाओगे उतना उतना डेबिट करते जाओ। जब पूरा पे कर दोगे पूरा डेबिट हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, लाइक दैट। तो जो जो पे कर रहे हो उसी की एंट्री करनी है। सिमिलरली फोर्थ वाला इज नो एंट्री। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? रिसीव्ड एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री। ओके, देन फिफ्थ वाला पढ़ो क्या हो रहा है उसके बाद। वी एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर, हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 5th of July। वी एग्जीक्यूटेड द ऑर्डर मतलब व्हाट? वी आर परचेजिंग और वी आर सेलिंग? वी आर सेलिंग नाउ। देखो, प्लेस्ड एन ऑर्डर मतलब हम लोग परचेज करेंगे, रिसीव्ड एन ऑर्डर मतलब हम लोग सेल करेंगे, तो वी आर सेलिंग द गुड्स। हाउ आर वी सेलिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट ऑन कैश और क्रेडिट? हाउ आर वी सेलिंग द गुड्स? क्रेडिट। हाउ डू यू डिटरमाइन ऑन क्रेडिट? ऊपर का लाइन पढ़ो, वसंत से सेल, वसंत को सेल किया है, राइट? वसंत को सेल किया है, तो पार्टी का नाम दिया है और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। वहां पे दिख रहा है आपको? पार्टी का नाम है एंड नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट कैश। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? So that means the transaction is on credit. That means the transaction is on credit. So which discount should come? Can you look and tell me? Sir, only TD. Only trade discount. Only trade discount will come, and that should be 10,000 का 10%. 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 rupees. So what is the net amount? 9,000 rupees. Okay, 9,000. I'm not showing the calculation. You can do it orally or you can show it behind also after the sum. Okay. 9,000 rupees में हमने सेल किया है on credit basis. Can you tell me the journal entry for that? Vasant account debit to sales account. Vasant account debit to sales account. Vasant account debit to sales account. That should be 9,000 rupees. Vasant account debit to sales account 9,000 being goods sold to Vasant. Being goods sold to Vasant. Now this is on credit basis. Can you look at it and tell me who is Vasant for us? Debtor. Vasant is a debtor. और जब आपने received an order का लाइन पढ़ा तो उधर एक और कंडीशन दिया हुआ था, पेमेंट विद इन 5 days. कैन यू सी दैट? पेमेंट विद इन 5 days. इसका मतलब क्या कि ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के 5 दिन के अंदर अगर अपने को पैसा मिल जाएगा तो हम लोग सीडी अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेम लॉजिक जो हमने परचेज के वक्त अप्लाई किया था, सेम लॉजिक विल अप्लाई एट द टाइम ऑफ सेल्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट? यहाँ तक क्लियर सबको? ओके, बढ़े आगे। चलो, अभी वसंत से हमें कितना लेना है? 9,000 लेना है। टीडी वाला अमाउंट नहीं लेना है, टीडी वाला कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, आफ्टर टीडी। ओके, बिफोर टीडी नहीं, आफ्टर टीडी। सो 9,000 लेना था। अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ो, 6th में दिया हुआ है, 6th July, received a check from Vasant for 1/3 of the amount due. Received a check from Vasant for 1/3 of the amount due. तो वसंत अपना अकाउंट सेटल कर रहा है 1/3 अमाउंट के लिए बेसिकली। तो वसंत से कितने का अकाउंट सेटल हो रहा है? 3,000 का हो रहा है। 9,000 का 1/3, 9,000 का 1/3 होता है 3,000। अच्छा, हम क्या पूरा 3,000 ले लेंगे वसंत से? Will you give us full 3,000? No, 2% CD. 2% CD. We'll have to subtract 2% CD. Why are we going to subtract CD? All of you understood that? Did you get the logic behind it? 5 days. 5 days. Okay, means what?
5th को सेल हुआ है तो 6, 7, 8, 9, 10 10 या 10 से पहले तक वो अगर पैसे दे देता है तो फिर सीडी अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 10th को भी देता है तो भी सीडी अलाउ करेंगे, ठीक है। 9th को भी देता है तो भी सीडी अलाउ करेंगे। ये भाई तो 6th को ही दे दिया, तो 3000 पे सीडी माइनस करना है अपने को। व्हाट इज द सीडी फॉर वसंत? 2%, 2% that is 60 rupees, so net amount is 2940, 2940. Can you guys tell me the journal entry for this? Cash account debit, discount. Cash की बैंक Bank account debit. या Discount allowed account debit to Vasant. यस, चेक आ रहा है ना बॉस, चेक आ रहा है तो विच अकाउंट वी यूज? बैंक अकाउंट, राइट? चेक आ रहा है तो वी यूज बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit, bank account debit, discount allowed account debit to Vasant account. All of you clear? बैंक में पैसा आ रहा है, debit the receiver, discount is expense and Vasant is the giver, so credit the giver. या modern concept, बैंक asset बढ़ा तो debit, discount expense बढ़ा तो debit और Vasant asset घट गया तो credit. वसंत वॉज एसेट, डेटर था, कम हो गया तो क्रेडिट। तो ये हो जाएगा 2940, 60 रुपीज एंड 3000। तो वसंत का अकाउंट 1/3 अमाउंट से सेटल हो गया, बीइंग चेक रिसीव्ड फॉर 1/3 अमाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड, बीइंग चेक रिसीव्ड फॉर 1/3 अमाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड। You can also write 1/3 payment received from Vasant and discount allowed at CD. Okay, can you tell me Vasant से अभी भी कितना पैसा लेना बाकी है? 6,000. Exactly. वसंत से अभी भी 6000 रुपीज लेना बाकी है। सबको समझ आ गया? प्रथम, निशांत, यशवी, फोरम, all of you got that? We have to yet receive how much? We have to yet receive 6000 from Vasant. 1/3 आ चुका है, 2/3 लेना बाकी है, 6000 लेना बाकी है। ये याद रखना है आपको। Keep that in mind. Okay. Next one is 7th of July. What is happening? Read. Sold goods worth ₹1000 at 10% TD and 2% CD. 7th July, we have sold goods worth ₹1000 at 10% TD and 2% CD. Is it on cash or credit? वो मेरा first question. Cash. Cash or credit? Cash. पक्का cash? Pakka cash? All of you agree on that? Because party's name is only missing. First condition gone, na? So it should be cash. Obviously, it should be cash. If it is on cash, which discount should come? Both. TD as well as CD. तो थोड़ा कैलकुलेटिव है तो मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, आप सम के पीछे भी दिखा सकते हो. After the sum, you can show the calculation, no problem. Okay. 1000 पे TD कितना आएगा? तो I think 10%. That is 100 rupees. So net amount is 900. And CD कितना आएगा? What will be the CD percentage? 2%. तो less CD 2%. CD माइनस करना है कि नहीं करना है बताओ मुझे. करना है, डेफिनेटली करना है, कैश ट्रांजैक्शन है. तो क्या हुआ बोलने का मतलब, मैं बेचने जा रहा था गुड्स 1000 पे, कोई बल्क में लेने आया तो मैंने उसको 900 में नहीं दिया. तो बिल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट इज 900, बिल बना 900 रुपए का, उस पे 2% दैट इज 18 रुपीज इज सीडी. सो नेट अमाउंट इज 882 रुपीज. तो मैंने उससे फाइनली बोला कि इमीडिएटली पैसा दे रहा है तो सीडी अलाउ करूंगा, उसने दे दिया इमीडिएटली. तो 18 रुपीज और डिस्काउंट अलाउ किया, तो फाइनली आई रिसीव्ड 882 रुपीज. अभी यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हो जाता है काफी स्टूडेंट से, जरा देख के बताना. व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन? हमने किया हुआ भी है पहले. What should be the journal entry? Think. Cash account debit, discount account debit, Discount allowed debit to sales sales account. account. Cash debit, discount allowed. Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. To sales account, why? Because simply we have sold it for cash, right?
इधर भूल से क्या लिख देते हैं सब लोग, कैश टू सेल्स, डिस्काउंट खा जाते हैं। तो डिस्काउंट मत खाना, डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट। सीडी है ना, टीडी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, सीडी तो रिकॉर्ड होगा ना, है ना मेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, समझ में आ रहा है। तो एंट्री बनेगी कैश डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। अमाउंट क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 800. 882, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 18, to sales 900. You sold goods of 900 but you received 882, being goods sold for cash at so and so TDCD लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। All of you comfortable? Cash account debit, discount allowed account debit to sales account. That was your 7th transaction, sales on cash. 8th one, purchased goods of rupees 3000 at 5% CD and 10% TD from Vishal for cash. From Vishal for cash. देख के पता चलना चाहिए which type of transaction is this, cash, Cash. or partly cash, Array. partly credit. It is cash Cash. transaction, entirely cash transaction. All of you agree on that? Anyone any difficulty in this identifying? पार्टी का नाम भले ही दिया लेकिन फॉर कैश आ गया ना, फॉर कैश, फॉर चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मतलब it is all a cash transaction. Okay, so which discount should come now? Sir, both the discounts. Both will come, TD as well as CD. Okay, Yes, sir, or it is in transaction has got both TD as well as CD. So what's your gross price? पहले तो 3000, अभी 3000 पे पहले क्या कैलकुलेट होगा, तो TD कैलकुलेट होगा। ऑर्डर में CD दे दिया तो पहले CD मत कर देना, ओके, स्टिक टू लॉजिक। तो पहले तो यूल सब्ट्रैक्ट 10% TD, बल्क परचेज का 300, नेट अमाउंट इज 2700, and then you subtract CD. What is the percentage of CD? 5%. Percentage of CD, 5%. 5% of 2700 is 135. Net amount is 2565. 2565. Is that clear? 2565. Comfortable? 2565. Okay. What should be the journal entry for this now? What should be the journal entry for this transaction? purchase Purchase account debit to cash account to Received account. discount Yeah, received. purchase account debit all expense, goods खरीदा, to cash account, पैसा गया, to discount received. तो विशाल का नाम नहीं आएगा क्या? विशाल का नाम आना चाहिए ना? नहीं आना नहीं आना चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है, कैश परचेज है, तो पार्टी का नाम आएगा ही नहीं। क्रेडिट पे तो पार्टी का नाम, कैश पे तो नो पार्टीज नेम, सिंपल। तो परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज में कितना लिखोगे, हाउ मच विल राइट इन परचेज, 3000 और 2700? 2700। टीडी वाला पोर्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। कैश कितना दिया हमने, हाउ मच कैश डिड वी पे, 2565, and how much is discount received, so 135. Is that clear? 135 rupees is discount received. All of you got that? Comfortable? So purchase to cash to discount received, being goods purchased for cash, and whatever discount, you can mention the discount. All right. Next one is 9th. Return goods of rupees 500 to Vishal. Return goods of rupees 500 to Vishal. What should be the journal entry? याद करो. Vishal account debit to purchase return. Vishal account debit to purchase returns. Returns are on cash or credit, remember? Credit. Returns are always on credit. Returns are always on credit. Hello. तो हमेशा जब हम रिटर्न करते हैं ना, तो परचेज रिटर्न, और कोई और रिटर्न करता है तो सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न इज लाइक इनकम,
Sales return is like expense. Okay, and other account will be parties account हमेशा. क्रेडिट पे ही होगा, कभी आप गुड्स रिटर्न करके आपको इमीडिएटली कैश कोई नहीं देने वाला है. गॉट इट? Sir, this is net, right? दिस इज नेट, दिस इज नेट. कुछ नहीं दिया है तो नेट, सेम अमाउंट. ग्रॉस दिया है तो ही लफड़ा है. ग्रॉस दिया है तो आपको टीडी माइनस करना पड़ेगा ढूंढ के. कुछ नहीं दिया है तो सेम वैल्यू. ओके, तो नेट ही है वो. तो विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. सर हमारा जो पहला वाला विशाल का जो हमने अकाउंट ओपन किया था वो अभी भी सेटल करना बाकी है, पर जो अभी सेकंड ट्रांजैक्शन हुआ उसका हमने पे कर दिया है. हाँ, पे नहीं किया है, रिटर्न किया है हमने गुड्स. पे थोड़ी तो किया. पहले का समझना है का कि सेकंड का? नहीं, रीसेंट. अगर सेम नाम के दो बंदे आ गए तो रीसेंट ट्रांजैक्शन. रिटर्न्स के लिए हमेशा रीसेंट ट्रांजैक्शन देखने का. रीसेंट. ओके, रीसेंट ट्रांजैक्शन कौन सा वाला है? 8th वाला है. तो ये 8th वाले विशाल को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. सो 8th वाला विशाल, वेलकम. सो दिस इज हाउ मच? 8th वाला विशाल को हम लोग 500 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं. ठीक है, 500. सो दिस इज बीइंग goods returned to Vishal. Being goods returned to Vishal. Okay. Then 10th one. Returned goods of 300 gross to Vishal. वापस रिटर्न किया है विशाल को, बट दिस टाइम इट इज ग्रॉस अमाउंट. ग्रॉस दिख गया तो क्या करना है अपने को? सब्ट्रैक्ट टीडी और सब्ट्रैक्ट सीडी. ओनली टीडी. सब्ट्रैक्ट ओनली टीडी. ओनली टीडी. ठीक है, सीडी वीडी माइनस मत कर देना, क्योंकि रिटर्न्स आर ऑलवेज ऑन क्रेडिट. पार्टी इज द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? सो रिटर्न्स के वक्त हमेशा खाली टीडी. अच्छा, कितना टीडी माइनस करना है? सीधा रीसेंट ट्रांजैक्शन 10%. का. रीसेंट ट्रांजैक्शन का टीडी देखो कितना परसेंट था? 10% था. 10%. I will subtract 10%. 10% TD, which is 30 rupees. So net amount is 270. Okay. क्या होगा आपका जर्नल एंट्री इसमें? विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. एंट्रीज डिट्टो सेम जो ऊपर हमने किया था, दिख रहा है? विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सेम एंट्री मैंने पास की है. परचेज रिटर्न की एंट्रीज डिट्टो सेम. अमाउंट खाली क्या हो जाएगा? विल द अमाउंट बी 300 और 270? 270. 270 rupees. Is that clear? 270 rupees will be your purchase returns amount. दोनों में फर्क समझ आया आपको? 9th और 10th में क्या फर्क हुआ? 9th में it was without discount, net amount. Net value. 10th में it was gross. Gross था तो आपको TD माइनस करना पड़ेगा. Is that clear? Sir, I have a doubt. हाँ बोलो. ऐसे अलग अलग क्यों है? मतलब ऐसे ऊपर में नेट वैल्यू और नीचे में? ये खाली आपके प्रैक्टिस के लिए है. बोला ना, ये पूरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. वैरायटी जैसे हमने टीडी सीडी वाला किया 9th और 10th सम, 8th और 9th. एक्चुअल प्रॉब्लम में एक ही मिलेगा आपको. ओनली वन रिटर्न मैक्सिमम है. ग्रॉस रहेगा तो ग्रॉस, नेट रहेगा तो नेट. What is actually net and gross? नेट एंड ग्रॉस. ग्रॉस मतलब बिफोर टीडी, ग्रॉस प्राइस जिससे हम लोग टीडी माइनस करते हैं. नेट मतलब आफ्टर टीडी, टीडी माइनस करने के बाद उसको नेट बोलते हैं. ओके, तो गुड्स रिटर्न्ड टू विशाल. ओके, देन नेक्स्ट वन, 11th वन, 10th वन. रिटर्न 10 हो गया ना? हाँ, 11th वन. Purchased goods of 5,000 at 10% TD from Ajay and 2% CD, paid 1/3 of the amount by check. Think and tell me, is it cash, credit or partly cash, partly credit? Partly cash. Partly cash, partly Partly cash, partly credit. Partly cash, partly credit. Okay, तो पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है आपको? पहले तो 5,000 rupees minus 10%. अमाउंट, उस पे पहले क्या कर देना? टीडी माइनस कर देना. याद आ रहा है? ये पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. हमेशा टीडी तो पहले दोनों पे आता है, तो सब्ट्रैक्ट टीडी एट द रेट ऑफ
10% है ना, 10% है, तो 10% ऑफ 5,000 कितना होता है, 500 होता है. सो नेट अमाउंट इज 4,500. यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? अभी 4,500 का मैं क्या करूंगा, दो टुकड़ा कर दूंगा. आई डिवाइड इट into cash and credit. Check and tell me how much amount are we paying? One third we are paying. So 1/3 transaction is on cash. So 2/3 transaction is on credit. What is 1/3 of 4,500? 1,500. 1500. And credit में आएगा 3,000 rupees. All of you got that? Credit 3,000, cash 1,500. Then comes the CD component. CD component कौन से पार्ट पे आएगा? CD component will be on the 30 cash rupees. part. CD component on the cash part, that is 30 rupees. 2% है ना? Yeah, 2%, that is 30 rupees. Perfect. So net amount is 1470. 1470. This is the credit part. This is the credit part. इधर मैं अजय लिख देता हूँ. अभी जरा सोच के बताइएगा. पूरा कैश भी नहीं है, पूरा क्रेडिट भी नहीं है. इट इज पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट विथ सीडी. पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट विथ कैश डिस्काउंट. तो पूरा एंट्री कैसे बनेगा? Purchase Purchase account to account, bank account to disallowed to Discount Ajay. received, Received, not received. allowed. Not allowed, received. Why? Because we are paying the money, na? Think logically. When we are paying the money and we are paying less, so it's our gain. So gain will be credit all incomes and gains. That will be discount receipt. Is that clear? Allowed will be when you receive the money and you receive less. That is allowed. Got it? So purchase account debit. Why to bank? Why to bank? We have If we given paid in check. Because we are paid by check. Because we are paid by check. So purchase account debit to bank account, right? Purchase account debit to bank account to discount received account. This is CD part, and to Ajay's account. Ajay's account, that is the credit component. Ajay's account, that is the credit component. Is that clear? So how will you write the amounts now? Can you tell me purchase mein what value are we supposed to write in purchase? 1,500. Huh? 4,000. 4,500. Purchase. Total goods कितने का आया? 4,500 after TD. Bill value. Total goods आपने खरीद लिया है 4,500 का. Okay? Goods आया 4,500 का. अभी पेमेंट कितना किया? How much cash are we paying net? 1,500. नहीं, 1,470. 1470. एक्चुअल पैसा हमने खाली 1470 दिया है टू बैंक, है ना? क्योंकि हमने गुड्स खरीदा, पहले बल्क में खरीदा, तो उसने बोला टीडी ले लो, तो हमने ले लिया. फिर गुड्स खरीदने के बाद हमने बोला 1/3 दे रहे हैं, तो बोला कम दो, आप टाइम पे दे रहे हो ना, तो आप कम पैसा दो. तो मैं 1,500 के जगह आई पेड ओनली 1470 आफ्टर डिस्काउंट. सो टू बैंक में आएगा 1470 एंड टू डिस्काउंट में कितना आएगा? हाउ मच इज डिस्काउंट रिसीव्ड? 30 rupees. And to Ajay, 3,000. Ajay is the credit 3,000. component, that is 3,000. Ajay is the credit component, that is 3,000. You can always cross check. Debit should be equal to credit. बराबर verify हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है? Cross verify, debit should be equal to credit. Narration लिखना, being goods purchased from Ajay, partly on cash and partly on credit. Okay, being goods purchased from Ajay, partly on cash and partly on credit. So that was your 12th one, 11th one, sorry. Then go to 12th one. Sold goods of 10,000 to Vijay at 10% TD, 2% CD, received half the amount. चलो सब लोग ट्राई करो. All of you try it. Come on. 12th वाला खुद से ट्राई करो. सेल्स हो रहा है पार्टली, अच्छा कैश हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट. व्हाट इज हैपनिंग? Partly cash, partly. Partly cash, partly credit. All of you, I want you all to try the discounts, then the entry as well.
डिस्काउंट एज वेल एज एंट्री। चलो ट्राई करो फटाफट, और ट्राई करो या सर वो जो नेक्स्ट टर्म है उसमें रिटर्न गुड्स ऑफ ₹300, तो विजय का ही कंसिडर करना है उसमें, क्योंकि दिया नहीं है किसने रिटर्न किया। कौन सा नेक्स्ट? सर 13 सम, हाँ वही है। हाँ हाँ, रिटर्न गुड्स ऑफ 300 विजय रिटर्न है, वो करेक्शन है, मैं करवाता हूँ। पहले 12th करो सब लोग, 12th। लुक एट द कैलकुलेशन, पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, सीडी टीडी दोनों है, कैसे करने का, पहले क्या आएगा, टीडी आएगा कि सीडी? कम ऑन, अनिका फिनिश्ड? अनिका कम ऑन, कैलकुलेट। पूजन हो गया? Yes, sir. ओके, हर्ष फिनिश्ड? Yes, sir. हो भी गया फटाफट। वाह। Are you all clear with the calculations? Are the calculations, all of you? And now the entry should be received half the amount, right? So cash account debit, discount allowed account debit, क्योंकि हम लोग अभी रिसीव कर रहे हैं तो कम रिसीव कर रहे हैं, that's our expense, discount allowed. Then Vijay account debit to sales account, cash discount allowed Vijay to sales. कैश में कितना आएगा, तो 4410, that is what you are receiving after discount. Discount allowed is 90, Vijay account is 4500, to sales is 9000 rupees, being goods sold to Vijay at 10% TD and 2% CD. किसको नहीं आया, नहीं समझा, बताओ मुझे। Anyone who did not get this entry or did not understand how what account is debited, credited with what amount, please ask. All of you clear with that? Comfortable? Any doubts? Okay. Next one. 13th वाले में करेक्शन है, विजय रिटर्न है, वो खाली रिटर्न गुड्स नहीं है, विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट, विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट। ओके, विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट इट इज 13th वाला, विजय रिटर्न गुड्स ऑफ 300 नेट। टेल मी व्हाट एंट्री यू विल पास, विजय ने अपने को रिटर्न किया है तो Sales return account. Sales return to account Vijay. debit. correct, sales returns account debit. Okay, debit all expense, sales return is like expense, so sales return account debit to Vijay account, sales return account debit to Vijay account. Is that clear?
Sales return account debit to Vijay account. Can you tell me the amount over here? 360. No, 300 only it is net. 300 net. 300. Next sum is 360. I was हाँ, thinking the So it next. is 500. 300. 500. I was thinking the Next has 300. अरे अरे, एक minute. You are looking Eighth at one is 9th 300 one. only. Third. 300, sir. How We are doing how it could be 500? 13th one पे amount 300 दिया है ना same. Sorry. I read 14th one. अरे यार क्या हो गया सबको, सब उल्टा transactions देख रहे हैं. 13th one देखो यार, 13th one, the amount of 13th one is 300. हेलो, net दिया है ना, net दिया है तो सेम वैल्यू ले लेने का, ठीक है. नेट दिया है तो यू हैव टू टेक द सेम वैल्यू. ग्रॉस दिया होता तो क्या करते? टीडी सब्ट्रैक्ट करते. और सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट पे ही होगा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न. अभी गुड्स आएगा, इमीडिएटली हम लोग पैसा नहीं देने वाले हैं, ठीक है. इट विल बी सेल्स रिटर्न, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट द गिवर. विजय इज द गिवर फिलहाल, सो क्रेडिट द गिवर. सो बीइंग गुड्स returned by Vijay. Being goods returned by Vijay. अच्छा 14th वाला पढ़ो ध्यान से. Look at 14th one. Vijay returned goods of 400 gross. अब क्या करोगे? Subtract TD. Now you will 10%. subtract TD. कौन सा TD subtract करना? विशाल का, विजय का, कौन सा? 12. का 10% टीडी. Nearest transaction of Vijay वाला दिख रहा है 10% TD. तो 400 पे I will subtract 10% TD, which is how much? 40 rupees. So net amount is 360. Is that clear? Now entry, will it change or will it remain same? The journal entry. Same. Journal entry will remain same. All of you got that? What will be the journal entry for this? Sales returns account debit. Sales returns account debit to Vijay account. But. What should be the amount? What should be the amount? 360 rupees. All of you got the difference between the two? Purchase return, sales return, gross net. Purchase return मतलब party is the receiver, debit the receiver, goods credit all incomes and gains. Okay? Vinisha ji, pay attention. Sales return में क्या होगा? Party is the giver, so credit the giver and debit all expenses and losses. Is that clear? Debit all expenses and losses. Sales return is like expense, purchase returns is like income. Purchase expense है ना, तो purchase return उसका opposite. It's like income. Sales is income, तो sales return उसका opposite. It's like expense. Understood? So sales return to Vijay 360 being goods returned by Vijay. अभी ये जो next transaction है, ये अगर आपको आ गया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया. ये सेटलमेंट टीडी सीडी सबका. देखते हैं किसको आता है ये 15th one. 15th of July. 15th of July. Next transaction is very important. कान, आंख, मुंह नहीं, कान और आंख. It will be 3,840, right? The amount. एक मिनट, let me calculate. सर नहीं सर 4500 रहेगा. 4500. एक ही अमाउंट आने वाला है बॉस. लेट मी चेक. 15th one. सर पूरे डिस्काउंट कैलकुलेट Without earning the discount. Around 660 का है. 3840. अरे मेरे को पढ़ने तो दो. 3840. विजय सर settled his 4500 आएगा. Vijay settled his account earning the benefit of discount. चलो. Vijay Without settled his earning the account without earning the benefit of टैक्स discount. अकाउंट 4500 आएगा. 3,840. 4500 आएगा. 840. 4,500 is a wrong answer. चलो वो निकाल. 3840 because sales return भी तो हुआ है, तो विजय account है 840. 660. So 3840. We have to subtract. तो सर इनडायरेक्टली उसको सेल्स रिटर्न का कैश ही मिल गया ना, इनडायरेक्टली. Correct. So your final amount is what? 4,500 minus 660. which is 3840. 3840 is the correct value. किसी और को लग रहा है कोई और अमाउंट होना चाहिए? बोलो मुझे. अब ये 3840 कैसे आया समझो इसको. देखो हमने एक बार पहले भी किया था, याद है? अगर आपको पता होता
कभी भी कोई डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट सेटल करना है, आपको अगर जानना है कि हाउ मच आर यू सपोज टू रिसीव फ्रॉम अ डेटर और हाउ मच आर यू सपोज टू पे टू अ क्रेडिटर, तो एक शॉर्टकट बताया था. डज एनीवन रिमेंबर दैट? क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? हाँ, क्रेडिट माइनस डेबिट. अगर क्रेडिटर को कितना पैसा देना है ये ढूंढना है, हाउ मच आर वी सपोज टू पे अवर क्रेडिटर, तो यू डू क्रेडिट माइनस डेबिट. एंड हाउ मच आर यू सपोज टू रिसीव फ्रॉम योर डेटर ये ढूंढना है, तो यू डू व्हाट? डेबिट माइनस क्रेडिट. यू डू डेबिट माइनस क्रेडिट. इज दैट क्लियर? तो बहुत सिंपल सा तरीका है. पहले तो मुझे बताओ किसका अकाउंट सेटल हो रहा है? विजय का अकाउंट सेटल हो रहा है. नाउ आस्क योरसेल्फ, हु इज विजय? इज ही अवर डेटर और इज ही अवर क्रेडिटर? डेटर. डेटर है कि क्रेडिटर है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, व्हाई इज ही अवर डेटर? यू गॉट दैट? बिकॉज यू हैव सोल्ड गुड्स टू हिम, राइट? यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू विजय, ये रहा विजय. विजय का सभी एंट्रीज को पकड़ के चलने का, ऊपर से अभी तक जितने विजय आए हैं सब विजय 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 को पकड़ लेने का. तो यहां से विजय शुरू हो रहा है. विजय विजय विजय, 3 एंट्रीज में विजय विजय विजय. सो विजय इज अवर डेटर. तो इससे पैसा लेना है कि इसको पैसा देना है? बोलो. लेना है. सपोज टू रिसीव. अभी कितना लेना है कैसे ढूंढोगे? डेबिट माइनस क्रेडिट. किसका डेबिट माइनस क्रेडिट? विजय का. तो विजय इज अवर डेटर. ओके, इससे कितना पैसा लेना है कैसे कैलकुलेट होगा? डेबिट माइनस क्रेडिट. तो देखो यहाँ पे विजय का डेबिट, हाउ मच इज विजय का डेबिट? 4500, बराबर. तो यहां से देख के लगता है कि अपने को 4500 लेना था. लेकिन उसके बाद विजय ने अपने को गुड्स रिटर्न कर दिया. अभी विजय ने जो गुड्स रिटर्न किया, क्या विजय उसका भी पैसा देगा अपने को? विल ही गिव अस फॉर दैट और विल ही गिव अस दैट मच लेस? बोलो. That much less. आप दुकान में गए, 4 नोटबुक्स लेके आए, 50 रुपीज का 4 नोटबुक लेके आए, 200 रुपीज हुआ. आपने बोला मैं आता हूं आधे घंटे में पैसा देने. तो आपने क्या किया? घर पे आए, देखा एक नोटबुक खराब निकला. तो आप दुकानदार को अभी कितना पैसा दोगे? 200 दोगे कि 150 दोगे? 150. एक नोटबुक रिटर्न कर दोगे, भैया ये तो डिफेक्टिव है, वापस रखो, और 150 रुपीज ले लो. वैसे ये कर रहा है. हमें विजय से वैसे तो वी वर सपोज टू गेट 4500, बट देयर वर सम डिफेक्टिव गुड्स. तो इसने अपने को रिटर्न किया है, तो ये दिख रहा है क्रेडिट हो रहा है विजय. यहाँ पे सेल्स रिटर्न टू विजय, सेल्स रिटर्न टू विजय. वी हैव क्रेडिटेड विजय इन दीज 2 एंट्रीज. मतलब क्या? अभी विजय से इतना पैसा कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे? बोलो. कम लेंगे. कम रिसीव करेंगे. तो हाउ विल यू अराइव एट द फाइनल अमाउंट? के भैया कितना लेना है अभी? नेट कितना लेना है? बहुत सिंपल है, डेबिट माइनस क्रेडिट. तो डेबिट में कितना है? 4500. विजय का डेबिट में 4500 माइनस क्रेडिट में है 300 और एक क्रेडिट में है 360. सो नेट अमाउंट कितना हुआ? 3840. 3840 लेना बाकी है. बताओ ये समझ आया कि नहीं? Did you understand the concept, logic, shortcut? Shortcut is debit minus credit. Logic is what? We have sold goods to him worth 4500. He has returned goods to us of 300 plus 360. 660 का goods return हो चुका है. So obviously he won't pay for that amount. He is going to pay us for the balance amount. What is that balance amount? It is 3840 rupees. All of you understood? Tell me. Any confusion, anyone? पक्का? बढ़िया. अभी 3840 तो लेना था. अभी next question. Did we allow any discount to him? That's my next question. Read and check and tell me. Did we allow any discount to him? No. उधर clear कर दिया है. Without earning the benefit of discount. Without earning the benefit of पूरा वसूल लिया. कुछ सीडी नहीं, पूरा पैसा ले लिया. कितना ले लिया? 3840 ले लिया. अब पैसा कैसे आ रहा है? चेक से आ रहा है, कैश से आ रहा है? कैश से आ रहा है. कुछ नहीं दिया तो कैश से आ रहा है. तो व्हाट जर्नल एंट्री विल यू पास फॉर दिस?
What will be the journal entry for this? Cash Cash account account debit. debit to Vijay account. Cash account debit to Vijay's account. Perfect. It should be cash account debit to Vijay's account. That should be 3840, being Vijay's account settled without discount. ये विदाउट डिस्काउंट मतलब कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, ठीक है. विदाउट डिस्काउंट मतलब माइनस करके नहीं, विथ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करने का. विदाउट डिस्काउंट में सीधा नेट अमाउंट, विदाउट डिस्काउंट में सीधा नेट अमाउंट. ओके. Sir, Is for that such transactions, we have to see the nearest. नियरेस्ट रिटर्न्स के लिए, सेटलमेंट के लिए नियरेस्ट विजय ट्रांजैक्शन, नियरेस्ट वन ऑब्वियसली हमेशा. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सेटलमेंट विजय वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्री. आई विल जस्ट हाईलाइट इट. वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन दिस वन. हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ये समझा. विजय का डेटर था तो डेबिट माइनस क्रेडिट किया. क्रेडिटर होता तो, अगर विजय हमारा क्रेडिटर होता तो क्या करते हैं, कैसे ढूंढते अमाउंट? Credit minus debit. क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट ऑफ विजय करके ढूंढ लेते अमाउंट. ओके. डिस्काउंट होता तो माइनस करके एंट्री करो, नहीं है तो डायरेक्टली करो. नेक्स्ट वन, 16th वन. Purchase goods of 20,000 at 10% TD, 5% CD from Ram, paid 1/4 of the amount. बोलो, is it cash, credit or partly cash, partly credit? Partly cash, Partly cash, partly credit. I want you all to try this. Come on, try it on your own. 16th one. Partly cash, partly credit. खुद से try करो. Partly cash, partly credit. 16th one. Try it. Come on. पहला स्टेप तो क्या करना है आपको, टीडी माइनस करना है. टीडी दोनों पे आएगा, कैश एंड क्रेडिट. तो 2000 रुपीज टीडी माइनस किया, नेट अमाउंट इज 18,000. एंड देन 18,000 का दो पार्ट्स कर देना है आपको. 1/4. ओके ओके, हो गया तो चेक करो. 1/4 इज कैश, 3/4 इज क्रेडिट. 1/4 कितना होता है 4,500. 3/4 होता है 13,500. CD कौन से पार्ट पे आएगा? CD will come on the cash component, which is 5%. So that comes to 225, I think. Yes, 4,275 and 13,500. Did you all get this amount? Calculations clear सबको? पहले टीडी तो दोनों पे आता है, क्रेडिट और कैश. तो टीडी हटा के फिर डिवाइड करना कैश और क्रेडिट में, ठीक है. अभी एंट्री फ्रेम करना है. आपने परचेज किया हुआ है 16th वाले में, तो एंट्री क्या बनेगा आपका? परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश और बैंक? परचेज अकाउंट डेबिट में टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में दे रहे हैं. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि सीडी है, credit all incomes and gains. And to is the party Ram, the creditor. Purchase में what value you will write? Tell me. Purchase में what amount you should write? 18,000. Purchase में आएगा 18,000 after TD. Okay, goods खरीदा आपने 18 का. To cash में कितना आएगा? Cash में 4,275. TD is how much? 225. And credit component is 13,500. Okay. Ram, being goods purchased from Ram, partly on cash, partly on credit. Purchased from Ram, partly on cash and partly on credit. Okay, got that? Okay. तो फिलहाल बताओ ये ट्रांजैक्शन देख के, who is Ram for us? Who is Ram for us? Creditor or debtor? Creditor, liability. Creditor. That means he's our liability. For how much? For how much is he our creditor? 13,500.
Why not 18,000? Because we paid 4,500 already. Because we have paid, settled the account by 1/4 immediately. So now he is our creditor, but for only 13,500. Okay. Now read the very next transaction that's linked to this one. देखो क्या दिया 15th one, sorry, 17th one. Paid the balance amount to Ram and earned the benefit of discount. Paid the balance amount to Ram and earned the benefit of discount. मतलब हमने राम को बैलेंस पैसा दिया एंड डिस्काउंट भी ऑन किया. तो राम को बैलेंस कितना दिया? 13,500. या तो आप सिंपल शॉर्टकट यूज करो, अभी मैंने बताया था आपको. क्रेडिटर को कितना देना है, कैसे ढूंढते हो आप? क्रेडिट माइनस डेबिट, है ना. डेटर से कितना लेना, कैसे ढूंढते हो? डेबिट माइनस क्रेडिट. क्रेडिटर को कितना देना है, कैसे ढूंढते हो आप? क्रेडिट माइनस डेबिट. तो चेक करो, राम के क्रेडिट में कितना पैसा दिख रहा है आपको? राम के क्रेडिट में हाउ मच कैन यू सी इन राम का क्रेडिट? 14,500. अच्छा, राम में कुछ डेबिट साइड पे अमाउंट, कहीं राम डेबिट हुआ है ऊपर? चेक कर लो. इज राम डेबिटेड एनीवेयर? नो. तो खाली क्रेडिट ही है 13,500. डेबिट में कुछ भी नहीं है. तो कितना होता है? 13,500. ओके, ये नहीं भी किया, डायरेक्टली भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ऊपर से ही देख के लॉजिकली पता चल रहा है 13,500 देना है उसको. अच्छा. आर वी पेइंग फुल 13,500? नहीं, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए. वी आर नॉट गिविंग 13,500. पढ़िए. डिस्काउंट डिस्काउंट विथ डिस्काउंट, विद द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट. तो लेस सीडी कितना है? राम का सीडी पढ़ो. 5%. राम वाला सीडी is 5%, that is 675. So net amount 12825. 12825. Is that clear? 12825. All right. Now, what should be the journal entry for this? याद से बताओ आराम से. Ram account debit to cash account to discount received account. कैश है कि चेक है? कैश दे रहे हैं क्या? ओके. सर दिया नहीं है. कुछ नहीं दिया है तो कैश, बराबर है. कुछ नहीं दिया है तो कैश है. तो एंट्री क्या बनेगा आपका? राम अकाउंट डेबिट, राम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ओके, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ये विथ डिस्काउंट एंड विदाउट डिस्काउंट का लॉजिक समझ आया आपको? विथ अर्निंग डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट माइनस करने का, विदाउट अर्निंग डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट नहीं करने का, माइनस. सो राम में कितना लिखोगे? हाउ मच यू विल राइट इन राम? 13,500. वेरी गुड. 13,500. कैश में कितना आएगा? 825. Yes, and discount receipt 675. Being Ram's account settled. Being Ram's account settled. The amount paid to Ram at CD at discount. Ram's account settled at discount. अच्छा, इसी ट्रांजैक्शन को मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करके देखो. मॉडर्न कंसेप्ट कौन था? राम कौन था? लायबिलिटी थी. लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? डिक्रीज. लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट. हर एक ट्रांजैक्शन में बैक ऑफ द हेड आपका मॉडर्न कंसेप्ट चालू ही होना चाहिए. मैंने आपको बहुत बार बोला है, मॉडर्न कंसेप्ट ही आगे जाके आपको यूज करना है. ठीक है, तो मॉडर्न कंसेप्ट हर एक ट्रांजैक्शन में आपको फिट करने आना चाहिए. लायबिलिटी डिक्रीज हो गया ना, हमने क्रेडिटर को सेटल किया तो लायबिलिटी डिक्रीज, सो डेबिट. अच्छा, कैश क्या है मॉडर्न कंसेप्ट? Asset. Increased or decreased? Asset also decreased. पैसा गया, so asset also decreased, so credit. And discount received क्या है मॉडर्न कंसेप्ट में? Income. Income increased, so credit. Income increased, so credit. Understood? Is it clear? 18th one. Purchased goods of rupees 10,000 at 10% TD and sold the same to Rajesh at 5% TD on list price. Same goods हमने purchase भी किया है और sell भी किया है. Same lot, we purchased also, we sold also. Okay? Purchase from कौन? Purchase का नाम ही नहीं दिया है.
sold the same to Rajesh. अच्छा, परचेज और अलग अलग सेल एंट्री है. अलग अलग करना, परचेज और सेल को कभी मिक्स मत कर देना, ठीक है. एक्सपेंस इनकम कैन नॉट बी क्लब, ऑपोजिट ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी क्लब. Check and tell me, how are we purchasing the goods? Is it on cash, credit? Cash. Cash, partly credit. How are we buying the goods? Cash. We are buying the goods for cash. क्यों cash? All of you got that? Party is name not given. Because party का नाम नहीं दिया है. Party का नाम नहीं दिया है, so we are buying it for cash. You're getting that? We are buying it for cash. Okay. So which discount should come at the time of purchase? TD. CD तो है नहीं, तो खाली TD ले लो. तो 10,000 का 10% subtract करो, you get 9,000 rupees. What is the journal entry? बताओ मुझे. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. Purchase account debit to cash account. How much amount you'll write? Purchase to cash? 9,000. 9,000 rupees. 9,000. TD is never entered in the books, right? CD तो था नहीं. अगर CD होता तो लेते क्या यहाँ पे? Discount. Would you have taken CD if it would have been there in the problem then? Yes. Definitely. Okay. यहाँ पे तो goods purchased for cash. Goods purchased for cash. Goods purchased for cash. खाली TD था, TD माइनस किया, CD था ही नहीं, इग्नोर मारा. अच्छा, सेम डेट पे एक और ट्रांजैक्शन हो रहा है. वही डेट पे आगे देखो क्या दिया है. Purchase हुए, sold them to Rajesh at 5% TD on list price. जरा सोच के बताना पहले तो, is this transaction on cash or credit? How are we selling the goods? Credit. How come you identify it is on credit? Party's name is given. And nothing is And given for about cash is not for cash. Yes. So both the conditions satisfied, right? So it is on credit. It is on credit. Which discount should come? Only TD. Only TD should come. Okay. Only TD should come. Now, कौन से अमाउंट पे TD कैलकुलेट होगा? 9,000 पे 10,000 याद है आपको? 9,000 पे लेना चाहिए ना अपने को. नहीं सर, लिस्ट प्राइस 9,000 पे लेंगे तो फिर लॉस हो जाएगा. हाँ, बढ़िया दिमाग लगाओ. अगर आप 10 का गुड्स 9 में खरीदा है आपने और 9 पे और डिस्काउंट दे रहे हो, फिर तो क्या है, लाणी कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो. ऐसा थोड़ी चलेगा. पप्पा नो बिजनेस बनते ही जैसे ऐसा नहीं चलेगा. तो आपका जो ग्रॉस प्राइस है, परचेज का ग्रॉस प्राइस और सेल का ग्रॉस प्राइस, अगर आप सेम लॉट खरीद के बेच रहे हो तो आपका ग्रॉस प्राइस विल रिमेन सेम. परचेज का ग्रॉस प्राइस और सेल का ग्रॉस प्राइस विल रिमेन सेम. याद आया ये सबको? किसी को लग रहा है 9,000 पे करना चाहिए डिस्काउंट? नहीं करता. पप्पा का दुकान पे नहीं बैठना. MRP पे ही होता है ना. हाँ, MRP दैट इज ग्रॉस. ग्रॉस के 5 नाम दिए थे ना आपको. इनवॉइस, ग्रॉस प्राइस, इनवॉइस प्राइस नहीं है, ये नेट इनवॉइस होता है. ग्रॉस प्राइस, मार्केट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, MRP, ये सब का मतलब एक ही होता है, ग्रॉस. इज दैट क्लियर? तो MRP में ही आपको बताया था हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल. 450 रुपीज का बॉटल है हेड एंड शोल्डर का. कंपनी को कॉस्ट पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ा है खाली 80 रुपीज. कंपनी ने उसको होलसेलर को बेचा 150 में, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 300 में, और रिटेलर आपको बेच रहा है 450 में. सब प्रॉफिट लगा लगा के बेचते हैं. MRP is 450. इज दैट क्लियर? तो ग्रॉस प्राइस पे सब डिस्काउंट होता है. whenever you buy and sell the same quantity, same lot, GP remains same. अच्छा, सेल हो रहा है at 5% TD, तो 10,000 पे ही मैं लूंगा 5% TD. 5% TD कितना होता है? 500 rupees. 500 rupees I'll subtract. So what is my net amount? 9,500. एंट्री क्या बनेगा? We are selling on credit. We are selling on credit. तो एंट्री क्या बना? Rajesh account debit to sales account. Perfect. Rajesh account debit to sales account. Okay. Rajesh account debit to sales account. Rajesh account debit to sales account. Amount is 9,500. Okay. 9,500. TD was 10%. No? हाँ. Purchase के वक्त it was 10%, but sale के वक्त it was
5%. 5%। सेल के वक्त भी अगर 10% दे दोगे तो क्या होगा? Total No loss. profit, no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? Profit. प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बता सकते हो? 500 500. 500 का प्रॉफिट कैसे हुआ? दिमाग लगाया आपने? आपको गुड्स पड़े थे 9000 में, लेकिन आपने कितने में सेल किए? 9500 में। सेल्स माइनस परचेज, इनकम माइनस एक्सपेंस, हाउ मच प्रॉफिट आर वी मेकिंग? 500 rupees in 500. this transaction. All of you got that? ऐसे दिन के 10 क्वांटिटी आप बेचोगे 5000 का प्रॉफिट हो गया। महीने का 1.5 लाख, साल का 18 We लाख। don't show profit anywhere here. But we don't show that profit or loss immediately, right? We show that profit or loss when are we going to calculate the profit or loss on goods? At the End end of the year. At the end of the year. Okay, all of you got that? Comfortable? Next one बढ़ते हैं आगे। क्या दिया 18th के बाद? Purchase. Sorry. In this we have to write a date again. Uh, 18th. Date again, yes, date if you don't write, but entries दो चाहिए। Date again you can write, even if you don't write the date, 2 entries and 2 different narrations. Students sometimes what they do, they club the entries, they club the narration. ऐसा नहीं करने का। Opposite transaction can never be clubbed. Okay, income and expense can never be clubbed. Okay, expense, income, purchase return, sales return, ये सब क्लब नहीं होता। Opposite entries क्लब नहीं होता। हाँ, परचेज क्लब करो, सेल क्लब करो, परचेज सेल को क्लब नहीं करना है। ये 2 एंट्रीज अलग चाहिए विथ नरेशन। डेट अलग से लिखो नहीं लिखो चलेगा, बट एंट्रीज तो 2 चाहिए ही। इज दैट क्लियर? एंट्रीज विथ नरेशन सेपरेट। सर ओके, या सर तो फिर हम लोग 18/7 में जैसे लिखा परचेज, फिर बाद में डेट लिख के बिना हम लोग राजेश टू सेल्स, या व्हाट आर यू आस्किंग जैनम? हाँ सर वही पूछ रहा था, मतलब Yes, yes. पहले Purchase to cash. 18/7/16 डेट लिख दिया, बाद में हाँ। परचेज टू कैश लिख दिया, हाँ। बाद में नरेशन लिख दिया, बाद में हाँ। एक लाइन छोड़ के हाँ, बाद में एक राजेश लाइन to छोड़ के राजेश टू सेल्स, यस, बीइंग गुड सोल्ड टू राजेश। ओके, yes, you can do that way. Next one, 19th one, purchase goods of 10,000 at 20% TD, 5% CD from Anand. Half the above goods were sold to Raja at 10% TD on list price. Half the above goods were sold to Raja at 10% TD on list price. पहले तो देखो परचेज कैसे हो रहा है, जरा परचेज पे ध्यान दो और बताओ। Are we buying on cash or credit or partly cash? How are we buying? 19th. credit. पार्टी का नाम दिया है आनंद, from आनंद दिया हुआ है। Credit. So purchase is on credit. All of you understood that? विनीशा को समझ में आ रहा है? पूजन को समझ आ रहा है? We have purchased on credit Prasiddhi. Are you understanding? Because Anand's name is given and nothing is specified about cash, right? Okay. So which discount should come? Priyal Gangar, कौन सा discount आना चाहिए if you are buying on credit? Priyal Gangar, if you are buying on credit, which discount should come? Only trade discount. Okay, cash discount नहीं आएगा. Perfect, absolutely right. So पहले तो 10,000 पे सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है आपको। 10,000 पे लेस ट्रेड डिस्काउंट इज हाउ मच? 20%। 20% होता है 2,000। सो नेट अमाउंट कितना हुआ? 8,000। ठीक है, अभी करके रुक जाना। सीडी पे लालच में आके कैलकुलेट मत कर देना सम में तो वापरने का, ऐसा नहीं होता। ओके, उल्लू बनाने के लिए दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे सिर्फ टीडी लेना है आपको, पता है ना? ये इमीडिएट पेमेंट हुआ तो सीडी लेना। अच्छा, एंट्री क्या बनेगी आपका? व्हाट विल बी द एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Anand's account. Purchase account debit to Anand's account. All of you understood? Purchase account debit to Anand because it was on credit. What should be the amount? 8,000. TD is never entered in the books. तो 8,000 का आपने कुछ, ये इनवॉइस वैल्यू है। 8,000 इज इनवॉइस। इनवॉइस या बिल वैल्यू बोलो, बिल बना आपका 8,000 का। ठीक है, तो आपको गुड्स पड़े 8 में, आपको आनंद को 8,000 देना है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आनंद,
being goods purchased from Anand. Is that clear? अभी इधर खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो क्या दिया है. Half of the above goods were sold to Raja at 10% TD on list price. जब बताओ half of the above goods आपने सेल किया है राजा को, आधा goods आपने सेल किया है, आधा. तो what should be the gross price for sale? 5,000. Just now I told you पूरा बेचते तो 10,000 होता ना gross price. हाफ बेच रहे हो तो 5,000 is your gross price. Agree? Okay. अच्छा, TD किस पे लेना है? 5,000 पे लेना है. Half the gross price. Yes. So half of 10,000. पहले तो half of gross करो, you get 5,000. आधा ही सेल किया ना, तो आधा GP ले लो. तो 5,000 पे less TD. How much TD is there at the time of sale? How much trade discount you have at the time of sale? 10%. 10% का trade discount है. तो कितना होता है trade discount? 500 and net amount is 4,500. Okay, tell me what journal entry you will pass for sales now. You're selling the goods, right? On credit. Raja account debit to sales account. So Raja account debit the receiver to sales account, credit all incomes and gains. Raja account debit to sales account, what amount? 5,000 or 4,500? 4,500. 4,500 being goods sold to Raja. तो परचेज भी हो गया, सेल्स भी हो गया. डेट वापस लिखना है लिखो, वापस नहीं लिखना है तो भी चलेगा. ओके, ऊपर मैंने 2 बार डेट लिखा था, नीचे मैंने डायरेक्टली कर दिया. योर विश, एब्सोल्युटली फाइन. इज दैट? या ये सब 4-4 मार्क के सम है ना? नहीं, 2 मार्क्स मैक्स. जर्नल एंट्री में 2 मार्क का ज्यादा वेटेज, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का वेटेज रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. कोई बहुत बड़ा एंट्री है तो 2.5, अदरवाइज 2 मार्क्स. हाफ 1 मार्क एंड 2 मार्क्स. जनरली दैट इज द ब्रेकअप. Next one is connected to this one. We'll do that and then we'll wind up. Okay, 20th one, last transaction for the day. 20th one देखो सब लोग ध्यान से, क्या दिया है. Raja returned half of the goods taken by him and the same were returned back to Anand. Raja returned half of the goods taken by him and the same were returned back to Anand. पहले क्या हुआ, हमने आनंद से goods purchase किया और राजा को बेचा. अब राजा ने उसमें से हाफ अपने को रिटर्न किया और वही डिफेक्टिव गुड्स हमने आनंद को वापस रिटर्न कर दिया. तो मुझे बताओ इस स्टेटमेंट में कितने ट्रांजैक्शन है? 1 और 2? 2 ट्रांजैक्शन. कैन वी क्लब बोथ सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न कर सकते हैं क्या? नेवर. यू कैन नॉट मर्ज योर एक्सपेंस विथ योर इनकम. यू कैन नॉट मर्ज ऑपोजिट ट्रांजैक्शन. बड़ा सा चोकड़ी मिलेगा, चोकड़ी. ओके, डोंट डू दैट. सो पहले क्या हो रहा है, सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न? सेल्स रिटर्न हो रहा है. पहले तो सेल्स रिटर्न हो रहा है. अच्छा, मुझे बताओ अपने को राजा ने कितना गुड्स रिटर्न किया? सबका सब की हाफ 2250. अच्छा, तो पहले सोचो आपने राजा को कितने का गुड्स सेल किया था? 4,500 सेल किया था, राइट? तो 4,500 का हाफ कर सकते हैं? 2250. अच्छा, 2250 में से टीडी माइनस करना है कि नहीं करना है? नहीं, इधर ग्रॉस नहीं दिया. नहीं करना है, ग्रॉस नहीं दिया. और ये 2250 तुमने ही ढूंढा है. देखो ये 4500 तो नेट ही था. 4500 नेट ही था और नेट का तुमने हाफ किया है तो वो भी नेट ही है ना? हाँ, अगर तुम 5000 का हाफ करते, तो वो 2500 होता, तो वो ग्रॉस होता. तो उस पे आपको टीडी माइनस करना पड़ता. गॉट इट? आंसर सेम ही आएगा. 2500 में से 10% माइनस करो, 2250 मिलेगा. 2 तरीके बताए थे आपको, अगर याद होगा तो. ग्रॉस का हाफ करके फिर टीडी माइनस करो, या सीधा नेट का हाफ कर दो. नेट का हाफ कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपको. इज दैट क्लियर? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. So 4,000, I'm taking the shortcut route. 4,500 का half, that is 2250. Okay, एंट्री क्या बनेगी बताइए?
Sales return account Sales return debit to account Raja account account. debit Raja. to Raja account. Yes. Sales return account debit to Raja's account. Sales return account debit to Raja. Debit all expense. Raja is the giver, so credit the giver. 2250. 2250. A modern concept. Sales return expense बढ़ा तो debit and Raja debtor कम हो गया तो credit. Debtor कम हो गया तो credit. Being goods returned by Raja. Being goods returned by Raja. अच्छा यहाँ पे खत्म हो गया कि अभी भी कुछ बाकी है? No, Anand बाकी है account बाकी debit सब to purchase return purchase बाकी है। return. Anand Same account goods debit हमने to return purchase किया है. account. Yes. Can I write the same amount in purchase return 2250? No. 2000. ये है important वाला part. एकदम ध्यान से देखना है, सब समझना है. Can I write the same amount in purchase return? बताओ. No, it will be 2000. No, it will be 2000. Divide by 2, which is 4000. Because in the previous transaction, Half only goods we had sold. of the goods, तो उसका भी half होएगा. divide by 2, which is 2000. Exactly. सर इन शॉर्ट 2500 का गुड्स है और उसमें से 20% टीडी माइनस कर दिया. वेरी गुड. ये दूसरा मेथड भी बता दिया. ओके, दोनों मेथड आपने बता दिए. देखो, एक मेथड में आप क्या कर सकते हो, ऐसे सोचना कि आपने टोटल परचेज किया था कितने का, 8000 का. 8000 का आपने कितना सेल किया था, हाफ, मतलब 4000. अब वो 4000 का भी हाफ रिटर्न हो रहा है, मतलब 2000. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग दैट. ओके, 8000 का हाफ सेल हुआ, 4000 का भी हाफ रिटर्न हो रहा है, मतलब 2000. तो परचेज रिटर्न में कितना अमाउंट आना चाहिए, 2000 आना चाहिए. ओके, या तो फिर दूसरा मेथड है, आप ग्रॉस अमाउंट से करो. ओके, ग्रॉस अमाउंट वाला मेथड थोड़ा इजी पड़ता है. देखो, ग्रॉस अमाउंट देखो, आपने 10,000 ग्रॉस का गुड्स परचेज किया था, 10,000 ग्रॉस, राइट. उसमें से 5,000 ग्रॉस का आपने सेल किया था, अग्री. उस 5,000 ग्रॉस में से कितने अमाउंट का रिटर्न हुआ है, हाफ. 5,000 में से हाफ 2500 ग्रॉस का रिटर्न हुआ है. वही 2500 ग्रॉस का हमने रिटर्न किया, सेम ग्रॉस है, लेकिन ग्रॉस है ना, ग्रॉस, तो टीडी माइनस करना पड़ेगा आपको. तो टीडी कितना माइनस करोगे, परचेज रिटर्न के वक्त कितना टीडी था, परचेज रिटर्न के वक्त 20% टीडी था. तो परचेज रिटर्न्स के वक्त 20% परचेज का परचेज, और सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी, दैट वाज 10%. सेल्स रिटर्न्स के वक्त भी मैं सेम कर सकता हूँ. सेल्स रिटर्न के वक्त देखो, सेल्स रिटर्न ये जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे एक और तरीका है, 2500 इज ग्रॉस, उस पे सेल्स का टीडी 10%, दैट इज 250. तो नेट अमाउंट इज 2250. ये मैंने जो 2250 लिया है ना, ऐसे भी कर सकते हो. लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में. 5000 का ग्रॉस का आपने सेल किया, 2500 का ग्रॉस का वापस आया, बट ग्रॉस है ना, ग्रॉस. तो ग्रॉस है तो आपको टीडी माइनस करोगे तो नेट मिलेगा. तो 2500 में से अगर सेल्स रिटर्न्स है तो सेल्स का टीडी माइनस करो, और अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज का टीडी माइनस करो. ग्रॉस तो सेम ही है 2500 दोनों के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न तो हो गया, अभी परचेज रिटर्न कर रहा हूँ. तो परचेज रिटर्न्स के वक्त कौन सा टीडी माइनस करूं, परचेज का टीडी करूं कि सेल्स का टीडी माइनस करूं, बताओ. परचेज का टीडी माइनस. तो 2500 ग्रॉस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रॉस लिया हुआ है मैंने, माइनस टीडी कितना लूं, 20% लूं कि 10%? 20%. दैट इज व्हाट, 500. नेट अमाउंट इज 2000. नेट अमाउंट इज 2000. या फिर दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया, 8000 का हाफ, उसका भी हाफ, तो 8000 का 1/4, दैट इज 2000. आंसर सेम ही मिलने वाला है. 8000 लिया ना, 8000 नेट था, 8000 वाज नेट, तो नेट का हाफ और उसका हाफ, तो नेट ही मिलेगा. वो ग्रॉस नहीं है, वो नेट है. ये मैंने ग्रॉस लिया हुआ. ग्रॉस समझा आपको, 10 का हाफ 5 का हाफ 2500, ग्रॉस रिटर्न हो रहा है. ग्रॉस रिटर्न हो रहा है तो टीडी माइनस करो. कौन सा टीडी, परचेज रिटर्न का 500 रुपीज. एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न का एंट्री क्या बनेगा, आनंद अकाउंट परचेज रिटर्न. आनंद अकाउंट डेबिट
to purchase returns account. Anand account debit to purchase returns 2000 2000 rupees 2000. और उधर ग्रॉस में 2500 कैसे आया? हाँ, आपने परचेज कितने का किया था आनंद से? 10,000 का किया था? 8000 8 नेट था, ग्रॉस वाला ग्रॉस 10 था, उसमें से हाफ सेल किया तो ग्रॉस का हाफ कितना होता है? 5000. अब वो 5 में से आधा रिटर्न हो गया है राजा से, आधा राजा ने रिटर्न किया, तो 2500 हुआ ग्रॉस, और वही ग्रॉस का आपने भी रिटर्न किया आनंद को, सेम डिफेक्टिव गुड्स आपने आनंद को रिटर्न किया, तो ग्रॉस तो सेम रहेगा ना, समझा? So in short, if we are taking gross, then we have to take everything in gross, and if we are taking net, then we have to take everything in net. Yes, simple. If you are taking gross, then take everything in gross, subtract TD at the end. If you are taking net, then sab kuch net. Then don't need to subtract TD. No need to subtract TD. Being goods returned to Anand. Batao. हाँ. In this transaction, CD was not there, but if CD would have been there, we would still not take it, right? Never. You never take CD in returns. Why? Returns पे कभी CD में credit पे होते हैं. Credit. Returns are always on credit. So only TD would have been subtracted. CD never comes in returns. Purchase return, sales return कहीं पर भी CD नहीं आने वाला. Is that clear? Sir, if we had done by the gross method and this method, answer will. ये ग्रॉस से किया है ना मैंने यहाँ पे. अच्छा, सेल्स रिटर्न भी ग्रॉस से करते हैं, ऐसे बोल रही हो तो बताया ना यहाँ पे, ये देखो 2500 less 10% 250 2256. आंसर विल बी द सेम. सर वो 8000 जो किया हमने सर, वो उससे डायरेक्ट 1/4 डिवाइड कर सकते हैं. वही तो मैं बोला तुमको. एक और मैं था, 8000 का हाफ कितना होता है? 4 का हाफ कितना होता है? 2. डायरेक्टली कर सकते हो ना. 8000 का 1/4 वही हुआ ना, हाफ 2 बार किया. 8000 का हाफ तुमने सेल किया, उसका हाफ रिटर्न हुआ, मतलब 8000 का 1/4 2000. वैसे भी कर सकते हो. That you can do. Is that clear? Okay. कोई भी मेथड, दोनों मेथड में से कोई भी अप्लाई करो, दोनों में से एक अच्छे से आना चाहिए. दोनों नहीं आया तो एक तो अच्छे से समझ में आना चाहिए. एक भी नहीं आया ऐसा कोई है तो बोलो मुझे. Anyone still confused in this? Who hasn't got the amount, who is not able to do it? Tell me. ग्रॉस या नेट, कोई भी एक मेथड समझ में आ गया? ग्रॉस वाला हमेशा ले सकते हो. ग्रॉस वाला यूनिवर्सल मेथड है. परचेज किया, ग्रॉस 10, टीडी माइनस किया 20%. सेल किया, ग्रॉस 5, टीडी माइनस किया 10%. सेल्स रिटर्न हुआ, ग्रॉस ले लो 2500, सेल्स रिटर्न का 10% टीडी माइनस कर. परचेज रिटर्न किया, ग्रॉस ले लो 2500, परचेज रिटर्न का टीडी माइनस कर 20%. खाली ये ध्यान रखना, जब ग्रॉस मेथड से कर रहे हो तो क्या ध्यान रखने का? सेल्स रिटर्न्स के वक्त सेल्स का टीडी माइनस, और परचेज रिटर्न्स के वक्त परचेज का टीडी. वो टीडी सेम रहेगा. परचेज रिटर्न, सेल्स. इज दैट क्लियर? सो वी स्टॉप एट दिस पॉइंट. ओके, होमवर्क आपको आ जाएगा. इसका ये सम हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर आपको स्प्लिट होके आना है 2 बैचेस में. आपको बैच की लिस्ट, नाम की लिस्ट आ जाएगी ग्रुप पे. टाइमिंग्स आपको मालूम है. बैच 1 इट इज 8 o'clock and batch 2 it is 9:45, Tuesday, Thursday, Saturday. Homework I'll send it to you in some time from standard textbook. Send it to me tomorrow evening तक without fail. कल शाम तक आपको भेजना है. ठीक है? कुछ डाउट्स है तो अभी you wait. कुछ भी डाउट हो इसमें नहीं समझाओ, please wait. I'll explain it again. If you don't have any doubts, you can leave. Tata, bye bye. Bye, sir. Thank you so much. Thank you, sir.